ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے جہاں محبت کرتے ہیں، مولا علی سے جہاں ہم عقیدت رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، وہی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے برات کریں۔ ہم جہاں شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، ان کے قاتل سے بھی ہمیں نفرت کرنا چاہیے، ان کے قاتل پہ بھی ہمیں لعنت کرنی چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ فقط اور فقط ہم نیکی نہیں کریں، بلکہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچائیں خود کو، تب مومن ہوں گے۔ ایک نئے زاویے کی روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت حذیفہ یمانی، بہت برگزیدہ صحابی تھے، بہت مقدس صحابی تھے۔ کتاب کا نام ہے مستدرک الوسائل، بہت ضخیم، بہت وزنی کتاب ہے ہماری قوم کی۔ توجہ فرمائیے گا، بعض لوگ اپنی نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ متقی ہو گئے، بعض لوگ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، بعض لوگ خیرات اور صدقہ اور ڈونیشن دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے دار ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ بہت کام کی روایت ہے۔ انشاءاللہ جب بھی یاد آئے یہ روایت تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے، سمجھ میں آ جائے تو عزیزان گرامی آخر میں اونچی آواز میں صلوات پڑھیے گا۔ حضرت حذیفہ یمانی بیٹھے ہیں، جناب سلمان بیٹھے۔ حضرت حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہماری بارگاہ میں، ہم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو رسول اسلام خطبہ دے رہے ہیں۔ فقط نیکی کرنا کمال نہیں ہے، برائی سے بچانا یہ کمال ہے۔ فقط حلال پہ عمل کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، تب کوئی علی والا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فقط اور فقط حرام جانور کی قربانی حرام نہیں ہوتی، حرام پیسے سے لایا ہوا بکرا بھی حرام ہوتا ہے۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی، ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد کی اللہم صلی۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر فاطمہ زہرا کی خدمت اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی خدمت کو بھی اس بارگاہ میں بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ صرف ایک کام کریں۔ شہزادی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حلال خدا کا پابند بناؤ، حرام خدا سے بچاؤ۔ نبی خطبہ دے رہے، قیامت کا روز آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا تو پوری دنیا کے لوگ، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قائم تک کے لوگ، ایک جم غفیر ہوگا اور اتنی دہشت ہوگی، اتنا لوگ شرمندہ ہوں گے اپنے اعمال پہ کہ لوگ وہاں ایک دوسرے سے نظر بچائیں گے کہ دنیا میں یہ مجھے عزت سے دیکھتا تھا، یہاں اگر میری کرتوت کا پتہ چل گیا تو کہے گا میں تو آپ کو بڑا مقدس سمجھتا تھا، یہاں آپ کی فائل کھل رہی، اب سمجھ میں آیا آپ کتنے پانی میں تھے۔ تو لوگ اپنے اپنے عمل سے شرمندہ ہو کے لوگوں کی آنکھوں سے بچائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا محشر کے میدان میں ایک لائن ہوگی، ایک قطار لگائی جائے گی، ایک بڑی کیو لگے گی، اس میں ایک ایسے گروہ کو لایا جائے گا کہ جن کی نیکیاں بہت ہوں گی، نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی قضا نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، روزہ ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ مستحبی روزہ بھی رکھتے تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ یہ لوگ اپنی عبادت پر فخر محسوس، پراؤڈ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ آئیں گے۔ فلائٹ کا ٹکٹ ہے، ٹرین کا ٹکٹ کنفرم ہے، تو ہم کیسے بیگ لیتے ہیں، سیدھے اپنے سیٹ پہ جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس یقین کے لیے ٹکٹ موجود ہے۔ تو یہ اپنے اعمال پر، اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں کا ان کے پاس ٹکٹ ہوگا۔ یہ یقین کریں گے کہ مجھے روکے گا کون، مجھے ٹوکے گا کون۔ یہ لائن میں کھڑے ہوں گے اور جنت کے دروازے کو دیکھیں گے، اب ہم جائیں۔ جیسے ہی اس لائن میں ہوں گے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اتنی نمازیں پڑھنے والے، اتنے تہجد گزار، اتنی عبادت کرنے والے، انہیں تمنا ہوگی کہ اب ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ منظر پس منظر میں تبدیل ہوگا۔ ایسے لوگوں کے اعمال کو، ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو آسمان میں روئی کی طرح اڑا کے پھینک دے گا۔ جناب سلمان حیرت سے پوچھتے، یا رسول اللہ، اتنی نیکیاں کرنے والے حضرات، اتنی یعنی نماز تہجد کے جو پابند ہیں، تو ان کا قصور کیا ہے؟
तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, पूरे खमसे का खुलासा है ये, फातिमा की फातिमी मजलिस का खुलासा है ये। पैगंबर इस्लाम जनाब सलमान के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कहेंगे ये वो लोग होंगे कि जो नेकियां तो करते थे, नमाज वक्त पे पढ़ते थे, अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे, लेकिन जब इनके सामने कोई गुनाह आता था तो खुद को बचाते नहीं थे। फ़कत सच बोलना कमाल नहीं है, झूठ से अपने को बचाना ये कमाल है। अज़ीज़ान गिरामी, फ़कत और फ़कत नेकियां करना कमाल नहीं है, अपने आप को बुराइयों से बचाना ये कमाल है। ज़िंदगी किसे कहते हैं, ये फ़ातिमा के हयात तैयबा से हमें सीखना चाहिए। मा हियल फ़ातिमा, खुलासे फ़ातिमा ये है कि अल्लाह ने फ़ातिमा के इख्तिदार में महशर के मैदान को रखा है। फ़ातिमा जब ज़िंदगी में परेशान हुई, फ़ातिमा जब अपनी हयात मुबारक में परेशान हुई तो अपने शौहर को कहती मुश्किल कुशा की बारगाह में, चलें बाबा की खिदमत में चलते। और रसूल बाबा हैं, मुख्तार कायनात हैं। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, उनके कब्ज़े कुदरत से कोई शय बाहर नहीं है। हम और आप कमज़ोर हैं लेकिन रसूल इस्लाम कमज़ोर नहीं है। फ़ातिमा की शादी हो गई, मौला कायनात के घर आ गई। हालत ये है कि फ़ातिमा अपने हाथ से चक्की चलाया करती थी, अपने हाथ से घर में झाड़ू दिया करती थी। उसके बावजूद भी जब फ़ातिमा ज़हरा से पूछा गया मौला कायनात के बारे में कि आपने शौहर को कैसा पाया है, अजीब जुमला है, आपने अपने शौहर से कभी कुछ मांगा, तो अजब सा जुमला शहजादी ने बयान किया, मुझे हया आती है कि मैं अपने उस शौहर से कुछ तलब कर लूं कि जो उसके बस में ना हो। जबकि मौलाए कायनात है, शहजादी हमें दर्श दे रही है कि जिंदगी की गाड़ी ऐसे चलाओ। परेशान हुई, मौलाए कायनात ने कहा कि फ़ातिमा आप दिन का काम करती हैं, रात में काम करती हैं, बहुत थक जाती हैं, आप अपने बाबा से कोई कनीज़ क्यों नहीं तलब कर लेती, चलें अपने बाबा की बारगाह में मेरे साथ और अपने बाबा से कुछ मांगे। शहजादी कौनैन ने कहा कि मुझे अपने बाबा से कुछ मांगते हुए हया और शर्म आती। जब मौला ने इसरार किया कि आपके बाबा की बारगाह से तो ज़मीन व आसमान सभी मांगते हैं, तो आप तो उनकी बेटी, इकलौती बेटी हैं। तो फ़ातिमा ज़हरा जब अपने बाबा की खिदमत में आई, सवाल क्या है, जवाब क्या मिला, और हमारी कौम के पास वो दौलत है, उस दौलत की मार्फत नहीं है, बाज़ लोगों के हाथों में भी है वो दौलत। अज़ीज़ान गिरामी, फ़ातिमा बाबा की बारगाह में आई, एक जुमला का अभी कुछ कह नहीं रही है। रसूल इस्लाम ने अपनी बेटी के आने का मकसद समझ लिया कि बेटी शर्म व हया से कुछ मांग नहीं रही। रसूल इस्लाम ने खुद सवाल किया, फ़ातिमा मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं मुख्तार कायनात हूँ, मैं सारी कायनात को अता करता हूँ, मुझसे कुछ मांगना है तो मांगो। फ़ातिमा ज़हरा ने कहा कि बाबा मेरे शौहर अली ने मुझसे इसरार किया था कि मैं बहुत थक जाती हूँ, हसनैन की खिदमत करती हूँ, अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, अगर कोई खादमा मिल जाए, कोई अगर घर में काम करने वाला कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे काम में हाथ बटा दे तो शायद मेरी मुश्किल में कुछ कमी हो जाए। रसूल इस्लाम ने यहाँ पे एक जुमला कहा कि फ़ातिमा क्यों ना मैं तुम जो मांग रही हो उससे बेहतर शय दूँ, उससे बेहतर चीज़ तुम्हें अता करूँ जो ज़मीन व आसमान में सबसे ज़्यादा कीमती है। तवज्जो फरमाइएगा। फ़ातिमा ने कहा बाबा आप जिसे कीमती समझते हैं और मेरे हक़ में जिसे आप बेहतर समझते हैं उससे बेहतर कौन सी चीज़ हो सकती है। फ़ातिमा ज़हरा ने जैसे ही कहा तो रसूल इस्लाम ने कहा कि बेटी मैं तुम्हें वो विर्द दे रहा हूँ कि अगर उसको तुम पढ़ोगी तो ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा खुदा तुम्हें शरफ अता करेगा। फ़ातिमा ज़हरा ने कहा बाबा वो कौन सी शय है। तो रसूल इस्लाम ने वो तस्बीह जो हम और आप अपने घर में पढ़ते हैं बड़ी स्पीड के साथ, रसूल इस्लाम ने कहा 34 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा कहो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी यहीं पे मुझे लाना था। सवाल किसका हुआ था? घर में काम करने वाली के लिए, घर में खादमा का सवाल हुआ था कि कोई काम करने वाली मुझे मिल जाए। या रसूल अल्लाह यहाँ सवाल कुछ हो रहा है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं वो तरीक़ा बता रहा हूँ कि जिसको अगर तुमने दर कर लिया तो दुनिया की सारी कनीज़ें एक तरफ, दुनिया की जितनी दौलत है वो एक तरफ, लेकिन जब ये दौलत तुम्हारे सामने आ जाएगी तो फिर तुम कभी अपने आप को अल्लाह की बारगाह से दूर नहीं करोगे।
फातिमा ने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे वो बाबा अता किया है कि जिसने मुझे वो तस्बीह अता की। अब जो फातिमा ने अपनी जबान पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहा, तो जो खजाना खुदा की बारगाह से नबी को मिला था, जबान फातिमा पे जब वो खजाना आया तो उसे तस्बीह फातिमा ज़हरा कहा गया। अजीज़ान गिरामी, बयान करने का मकसद ये है कि दौलत हमारे सामने है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया की करेंसी के पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया से उतना ही ले, कल या परसों की मजलिस में मैंने रिवायत पढ़ी थी कि उतना ही ले जितना हिसाब देने की कुदरत है। फातिमा ने वो तस्बीह ली और तस्बीह लेने के बाद अपने घर आई और तस्बीह को 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, सुभान अल्लाह 33 मरतबा तस्बीह को बनाया। और ये तस्बीह पहली मर्तबा शहजादी ने अपने बाबा के चचा हमजा की तुरबत की खाक से बनाया था। उसके बाद जब ये तस्बीह आज हम और आप खाके शिफा जिसे करबला से लेके आते हैं, उस तस्बीह से अगर हम खाके शिफा की तस्बीह से, फातिमा ज़हरा की तस्बीह से अगर अल्लाह का विर्द करेंगे, किसी तस्बीह से पढ़े सवाब है, लेकिन वो सवाब मैं बता रहा हूं कि जिसे वक्त के इमाम ने, हमारे और आपके वक्त के इमाम हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह, जिसके सदक़े में जिंदा है हम और आप, उस इमाम ने खाके शिफा की तस्बीह का जो सवाब बताया है वो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। और ये किसके निस्बत से? अपनी दादी फातिमा की निस्बत से। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ज़मान बयान करते हैं कि मेरी दादी, मैं भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात की तशरीह नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें बीबी से मंसूब हो रही हैं उसके कमालात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमाम ज़मान कहते हैं, आप और आप, हम जाते हैं करबला, नहीं गए, बहुत से दोस्त अहबाब जाते हैं, तो फरमाइश कर दिया कीजिए कि जब आओ तो मेरे लिए खाके शिफा की तस्बीह लेके आना, जब आओ तो मेरे लिए कम से कम कुछ लाओ ना लाओ, खाके शिफा की तस्बीह लेके आना। फातिमा ने बरकत क्या अता की। इमाम ज़मान कहते हैं कि दुनिया की किसी तस्बीह से तुम तस्बीह पढ़ोगे सवाब मिलेगा, लेकिन जब मेरे जद हुसैन की तुरबत से जो खाके शिफा तस्बीह बनाई जाती है, उस तस्बीह से जब तुम तस्बीह पढ़ोगे, तो जब तस्बीह पढ़ोगे तो एक मरतबा तुमने अल्लाहु अकबर कहा तो 70 मरतबा पढ़ने का सवाब मिलेगा। तवज्जो फरमाएं। उसके बाद इमाम बयान करते हैं कि हम और आप जब तस्बीह किसी आम तस्बीह से पढ़ेंगे तो जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तब हमें अल्लाहु अकबर कहने का सवाब मिलेगा। इमाम ज़माना ने कहा, खाके शिफा की तस्बीह अगर तुम्हारी हाथ में है, तुम्हारे दस्त में है, अगर तुमने अपने हाथों में खाके शिफा की तस्बीह रखी, अगर तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, वो हरकत कर रही है, तो तुम्हें तस्बीह का सवाब मिलेगा। 2008 में आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। इंतकाल से चंद साल पहले उनसे पूछा गया इमाम ज़माना के ज़हूर में की अलामतों में आज जो हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द है, आप बताएं कि इमाम का ज़हूर कब होगा। वो बयान करते हुए गए कि पहले मैं कहता था कि जो छोटे बच्चे हैं वो इंशाअल्लाह ज़हूर इमाम को देखेंगे, लेकिन अब जो हालात हैं ऐसा लगता है कि हमें अब तैयार हो जाना चाहिए। ये अल्लाह का वादा है आले मोहम्मद से कि तुमने मेरे जिक्र को आबाद किया, मैं तुम्हारे जिक्र से पूरी दुनिया में रौनक अता करूंगा। तो उस बीबी की दुआ है कि जिसने हमारी जिंदगी की दुआ की है, जिसने हमें हयात अता की है। वरना अपनी तारीख पढ़े हम और आप, ये सिर्फ सुबह उठ के स्कूल और कॉलेज चला जाना, दुकान खोल लेना या ऑफिस चला जाना, ये शिया नहीं है। शिया उसे कहते हैं कि जो अपने वक्त के इमाम के दर्द को महसूस करे। रिवायतों के जुमले हैं कि इमाम ज़माना हसरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं कि तुम तो आबादी में रहते हो, मैं तो वीरानी में रहता हूँ, तुम तो अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ रहते हो, मैं तो सहरा में रहता हूँ, तुम्हारे ऊपर उतने जुल्म नहीं हुए। मेरी आंखों के सामने मेरी दादी की कब्र टूटी हुई है, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे जिंदा हूँ, ये मेरा दर्द है जो मैं महसूस करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करने का मकाम है, गफलत से हमें जागने की ज़रूरत है। दुनिया कब्र से बाहर उसी वक्त तक हम चैन से जब तक विलायत अहले बैत के साथ हम हैं। और ये विलायत अली की मोहब्बत, ये फातिमा का सदका है कि जो आज हम अपनी ज़बान पे नाम अली लाते हैं। इमाम सादिक ने बयान किया कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा के खुतबे फ़दक को अपने बच्चों को तालीम दो, अगर हम वाक़ई आले मोहम्मद के चाहने वाले। अब ज़रा सा अपनी कदर महसूस कीजिएगा और फातिमा ज़हरा की कुर्बानियों को याद कीजिएगा। यही तो लिखा हुआ है कि या अली, मेरी वसीयत है कि मेरी शहादत के बाद मेरी औलाद को मेरा सलाम कहिएगा। पसलियां टूट गई हैं, औलाद याद है।
अजीज़ान गिरामी, हज्जाज बिन यूसुफ के सामने सारे शियों को कत्ल किया जा रहा है, खुश होता था। उसने एक मरतबा अपने दौरे हुकूमत में एक ऐलान कराया, फ़ज़ाइल में आपकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह हमारे ईमान में इजाफ़ा करे। ये क़ुर्बत इमाम का वक्त है, अपने वक्त के इमाम को अल अजल कह के आवाज़ दे, ऐनत तालिबो बेदमिल मक़तूल बे करबला। ए वक्त के इमाम, आपको आपकी दादी फ़ातिमा के हक़ का वास्ता हमारी आवाज़ों पे लब्बैक कहे मौला, हमारी आवाज़ों को सुने मौला। हमें सलीक़ा नहीं है, फ़र्श से उठने के बाद हम आपको याद करते हैं, थोड़ी देर ही यहाँ बैठे हैं, मौला ईमान में ताज़गी अता कीजिए।